Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, as you know very well that we have started our online classes due to the spread of COVID-19. So students, the most important thing is that your cooperation is very much necessary and each one of you must be cooperative in this sense. Students, today we are going to have our lecture number 1 and we will discuss the very famous character Mr. Chips. Mr. Chips has been the part of a very famous institution named as Brookfield, and Brookfield had been very important for Mr. Chips throughout his life. Mr. Chips was born in 1848. First, in 1869, he became the part of a school named as Melbury School, but as a teacher. But he could not stay there for a long time. In 1870, he joined Brookfield, where he spent the most of part his life as a teacher. Later on, he became its headmaster. Students, Brookfield had been very important for Mr. Chips in the whole of his life. He married in the age of 48 to Catherine, but after 2 years she died. This was a great loss for Mr. Chips. Then, when he was of 60 years old, his headmaster, Mr. Ralston, asked him to be retired, but he refused. Then, in 1917, the headmaster of Brookfield became ill, and Mr. Chips became its headmaster. Then, on 11th November 1918, he resigned, and the next 15 years of his life he spent in taking rest. Students, he missed his institution Brookfield very much in these 15 years. Finally, in November 1933, he died. Students, today we will discuss the first chapter of the lesson named as Mr. Chips. He uh, he was in the house of Mr. Wicket, and there was also his wife Mrs. Wicket. He stayed there as a paying guest. Students, there he was lost in the memories of his past. Let's see the text. When you are getting on in years but not ill, of course, you get very sleepy at times. Here in these lines he is saying that जब आप बूढ़े हों, यानी आप बीमार भी नहीं होते, लेकिन आप पर हर वक्त नींद जो है उसका गुलबा रहता है. एंड द आर सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस आ लैंडस्केप. और लम्हात जो है, वक्त जो है वो दिलकशी के साथ ऐसे गुज़रता है जैसे मवेशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हों. इट वॉज़ लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टन टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट. जैसे ही चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था कि जैसे ही मौसम ख़ज़ां का तालीमी दौरानिया ज़ोर पकड़ता और दिन छोटे होते जाते, टिल इट वॉज़ एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर फॉर चिप्स. और दिन इतने छोटे हो जाते कि स्कूल में तलबा की हाज़िरी जो है उससे पहले ही इतना अंधेरा छा जाता कि उसे गैस जो है उसको रोशन करना पड़ता. फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन स्टिल मयर्ड टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट. चिप्स जो है वो अभी भी किसी बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह
वक्त का जो तयन है वो माजी के कुछ इशारात से करता था, कुछ निशानियाँ थी जिनसे करता था। फॉर ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। मीन्स मिस्टर चिप्स जो है वो मिसिस विकेट के घर रहता था, और वो जो है वो उस घर में, और मिसिस विकेट का जो घर था और जो स्कूल था उसमें सिर्फ एक सड़क का फासला था। मीन्स ही डिड नॉट वांट टू बी अवे फ्रॉम his school where he had spent a lot of time. The school was Brookfield and it was very near to Mrs. Wickett's house where he was living as a paying guest. He had been there for more than a decade, ever since he finally gave up his mastership, and it was Brookfield far more than Greenwich time that both he and his landlady kept. यानी वो 10 साल से वहाँ मुकीम था, और तब से वो वहाँ पर था जब उसने ब्रूकफील्ड जो है उसको छोड़ा था, और ये ब्रूकफील्ड ही था जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम था, ग्रीनविच से भी ज़्यादा अहम था, और जिसकी पाबंदी चिप्स और उसकी मालकन दोनों करते थे। यानी स्कूल छोड़ देने के बाद भी मिस्टर चिप्स जो है वो स्कूल से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, और स्कूल के जो मामूलात थे उसकी पाबंदी जो है उसके साथ साथ जो मिसिज़ विकेट थी वो भी उसकी मालकन मकान जो थी वो भी करती थी। चिप्स वुड सिंग आउट in that jerky high pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. You might bring me a cup of tea before prep, will you? यानी मिस्टर चिप्स अभी भी अपनी रूटीन जो है वो स्कूल की रूटीन के मुताबिक रखना पसंद करता था, और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पुकारता था, और उसकी आवाज़ जो है उसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ी थी, बशाशत थी, वो बाकी थी। और वो ऊंची आवाज़ में क्या कहता था कि यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, यानी हाज़िरी से पहले पहले क्या तुम मुझे चाय का एक कप लाके दे दोगी। यानी वो अपने मामूलात को स्कूल के मामूलात के मुताबिक चलाना पसंद करता था। When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner call over prep and lights out. यानी जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आग के पास बैठना और चाय पीना, और डिनर हाज़िरी प्रेप और रोशनियां गुल करने के लिए, रोशनियां बंद करने के लिए स्कूलों की घंटियों की आवाज़ सुनना जो है ये बहुत अच्छा लगता है। यानी मिस्टर चिप्स के मुताबिक ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसके लिए अभी भी बहुत कशिश का बाइस है कि वो अपनी रूटीन जो है वो स्कूल के मुताबिक ही चला रहा है। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर दैट लास्ट बेल। मिस्टर चिप्स जो हैं वो हमेशा आखिरी घंटी के बाद घड़ी में चाबी भरता, उसको चाबी देते। देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, टर्नड आउट द गैस एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड। उसके बाद उनकी क्या रूटीन थी, फिर आग के आगे जो हफाजती जंगला था वो रख देते, गैस जो थी उसको बुझा देते, और बिस्तर पर चले जाते एक जासूसी नावल लेकर। यानी अब वो अपने बिस्तर पर चले जाते ताकि कुछ नावल का हिस्सा जो हैं वो पढ़ सकें। रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुली। यानी वो सुकून से सोने से पहले मुश्किल से एक सफ़ा ही पढ़ पाते थे। मोर लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग
of perception than any changeful entrance into the another world. नींद जो है वो मिस्टर चिप्स के लिए एक तरह तरह की जो तब्दीलियों से आरास्ता दुनिया है उसकी तरह थी। यानी नींद जो थी वो अभी भी मिस्टर चिप्स जो है उनके जो शऊर है उसको बढ़ा देती थी। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। क्यों था ऐसा? क्योंकि उनके दिन रात जो थे वो एक ही तरह के थे, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हो चुके थे, लिहाजा उनके पास वक्त ही वक्त था और वो अपना वक्त जो है वो ज़्यादातर तो ब्रूकफील्ड की घंटियाँ सुनते हुए गुजारते थे। इसके बाद वो नावल पढ़ते थे और उनके मुताबिक उनके जो दिन रात थे वो अब एक जैसे ही हो चुके थे। Then we have an other paragraph. He was getting on in years but not ill, of course. Indeed, as Dr. Merivale said, there was really nothing the matter with him, my dear fellow. You are fitter than I am. यानी वो बूढ़े हो रहे थे लेकिन बीमार नहीं थे, जैसा कि डॉक्टर मैरीविल जो हैं, जो उनके डॉक्टर थे, वो कहा करते थे कि उनकी सेहत जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन यानी कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा चुस्त हैं। मैरीवेल वुड से sipping a glass of sherry, then he called every fortnight or so. यानी जब भी वो उनसे 15 दिन के बाद मिलने आते तो वो चाय पीते हुए ये बातें कहा करते थे। यू आर द पास्ट एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीज़ेस, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, दैट इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डाई एट ऑल। यानी वो ये कहा करते थे कि मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं और आप उम्र के इस हिस्से में हैं जब लोगों को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं, और लेकिन आपके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जो कुदरती तौर पर वफ़ात पा जाते हैं। यानी ये उनकी जो वफ़ात है वो किसी देरीना बीमारी की वजह से नहीं होती, सिर्फ़ इसलिए कि वो बूढ़े हो चुके होते हैं। लिहाजा आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, वन नेवर नोज़। आप हकीकत में एक गैर मामूली बूढ़े लड़के हो जिसके जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोअर्ड ओवर द फेनलैंड्स, लेकिन जब कभी मिस्टर चिप्स को सर्दी लग जाती या ठंडी हवाएं चलती, मशरकी हवाएं चलती, then what happened? Merivale would sometimes take Mr. Wickets aside in the lobby and whisper. तो मैरीवेल जो है वो मिसिस विकेट को एक साइड पर ले जाते और उनसे कहते, सरगोशी करते, आहिस्ता आवाज़ में कहते, लुक आफ्टर हिम, इनकी देखभाल करें। यू नो, जैसा कि आपको पता है, हिज चेस्ट के इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, के इनके सीना जो है, दिल जो है उस पर दबाव आ जाता है। देन नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, इनके साथ कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ी तकलीफ़ नहीं है। ओनली एनोडेमिनी, बट देयर इज़ द मोस्ट दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेंट, सिर्फ यही है कि ये बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं।
और दर हकीकत यही सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा मर्ज़ है इन द एंड ऑफ ऑल इन द एंड। यानी बुढ़ापा जो है वो खुद ही एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, लिहाजा आप इनका ख्याल रखें। देन वी हैव एनो डोमिनी बाय लव। यस, born in 1880 and taken to the great exhibition as a toddling child। जी हाँ, वो 1848 में पैदा हुए थे और जब उसे एक अजीम नुमाइश में ले जाया गया तब वो एक छोटा सा बच्चा था जो छोटे छोटे कदम उठाकर चलता था। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बोस्ट अ थिंग लाइक दैट। बहुत कम लोग हैं जो अभी तक ज़िंदा थे। और बिसाइड्स चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रूकफील्ड इन वेदर बाय टाइम। और मिस्टर चिप्स जो हैं वो उनको वेदर बाई के जो वक्त है, ये जो वक्त था उनके बुढ़ापे का वक्त था, वो अभी भी याद था और वो उस पर फ़ख्र कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स, we will read the chapter today, and we have almost read almost three paragraphs of the lesson. Students, the work you are to do is to learn the questions of chapter number 1. You will learn 10 questions of chapter number 1. This is your homework. Thank you so much.